So, all right, class 8 students, welcoming you all one last time to this chapter that is the colonial era in India. I guess this will be the one of the chapter जो बहुत लंबा चला लंबा इन द सेंस 13 एपिसोड्स हैं वैसे आपका एक और चैप्टर था जो कि 15 एपिसोड का था वो लेकिन सिर्फ छोटा चला था क्योंकि आई डिड दैट एज एन एवरीडे एपिसोड राइट वो 15 रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप इफ यू रिमेंबर it was of yours or not? Yes, it was of your only, right? Reshaping Indian political map. तो आप लोग का ही था वो और वो पूरा के पूरा 15 एपिसोड का था राइट 13 एपिसोड से 2 एपिसोड ज्यादा बट देन ऑल्सो उसको हमने एवरीडे किया था सो मे बी 2 हफ्ते के अंदर में एक हफ्ते ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर एक दिन ज्यादा लेकर it ended but now like what it has been मैंने पहले सोचा था it will be a kind of smaller chapter actually I didn't see the chapter first deciding the dates and I have actually made the other episode other chapter का सब कुछ so I thought of utilizing this as well, starting with a new chapter. So I thought of putting it history. So history मैंने डाल दिया लेकिन when I started with this chapter and then I see there are not only there are 34 pages. I thought like it may be run for 3, 4, 5 episodes, right? Then 1 month will be all right. But then I saw it like it was more than like I guessed it was more than 10 episodes. And now it is the last episode, that is the 13th episode. So that is at start I put it at 1 day only, 1 day per week. But then I now shifted it to 2 days a week because I have to complete it. Right. So here it is. We are with our last episode of this particular chapter, and now we'll move on to before we move on. Right. So this is your summary of this kind of chapter. So let us start. The Portuguese, the Dutch, the French, and the British were attracted to India primarily because of her great wealth. They fought among themselves for dominance of subcontinent with the British gaining the upper hand. यानी कि जो डच आए थे जो पोर्चुगीज आए थे जो फ्रेंच आए थे जो ब्रिटिश लोग आए थे यूरोप से सारे लोग ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे ये इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि इसकी बहुत अच्छी धन दौलत थी बहुत अच्छी वेल्थ थी एंड उन्होंने डोमिनेंस की उन्होंने ये सबको एज एन अपने उसके अंदर करने के लिए दे वो फाइटिंग फॉर दिस सब कॉन्टिनेंट बट एट द एंड ब्रिटिश जो है उन्होंने अपना ऊपर अपर हैंड रखा एंड दे गेन दैट right? The British ruthless taxation policy inflicted great misery on the people, causing severe famines in particular and millions of deaths. Deliberate deindustrialization of India devastated her once thriving manufacturing sector. मतलब कि जो ब्रिटिश थी उनकी एकदम रूथलेस टैक्सेशन पॉलिसी उनकी एकदम बेदर्द काइंड ऑफ ऐसी ऐसी पॉलिसीज थी ऐसे ऐसे टैक्सेशन की चीजें थी जो कि एज एन आपकी बहुत ऐसे इन्फ्लेक्ट कर रहा था लोगों को ब्रिटिशर्स के जिन जो ब्रिटिशर्स उस पे ये जुल्म वगैरह ढा रहे थे उनको वहाँ पे बहुत सारे उनको पैसे देने पड़ते थे वो सीवियर फेमाइन से कभी कभार बहुत लाखों लोग मर जाते थे मिलियंस ऑफ लोग एंड जो डेलिबरेटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जानबूझ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में रोका गया उसने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको ठप कर दिया बंद कर दिया है ना Gradually, the British imposed their administrative structures, legal systems, and educational institutes to ensure total colonial control over Indian society. अब जो इंडियन सोसाइटी थी वहाँ पे खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था तो मतलब कैसे कैसे कहाँ पे राजा थे फिर कहाँ पे चीजें थी ऐसे स्मॉलर स्मॉलर लेवल पे लोकल बॉडीज के विलेज काउंसिल्स थे ये सब थे बट उन्होंने वो सब हटा दिया अपने अपनी चीजें लाए और जैसे विलेज काउंसिल वगैरह बहुत चीजें डिसाइड करी थी उन्होंने वो भी हटा दिया दे डिसाइडेड टू ब्रिंग कोर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड देन जो ऐसे पाठशाला मदरसे वगैरह थे उन सबको भी हटा के अपने एजुकेशनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट खोल लिए राइट एंड पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी में अपना पूरा का पूरा कॉलोनियल कंट्रोल उन्होंने बैठाना चाहा राइट If I move forward, the Portuguese focused on religious conversions and cultural transformation in Goa, created long-lasting social division. The French policy of assimilation created a small elite of culturally French Indians in Pondicherry. मतलब कि यहाँ पे जो पोर्चुगीज लोग थे राइट उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत टोल्ड यू ना जब हम पोर्टुगीज के बारे में पढ़े थे दे डिड व्हाट वो लोग एज एन लोगों को वो कर रहे थे कन्वर्ट करवाने के उसमें थे एंड अगर नहीं कर रहे थे तो दे वर काइंड ऑफ टॉर्चरिंग देम एंड एवरीथिंग व्हाट नॉट राइट एंड दिस वाज हैपनिंग इन ऑल गोवा जिसने लास्ट तक आपकी ये सारी चीजें छोड़ी अब जो फ्रेंच पॉलिसी एजिमिलेशन की ना व्हाट इज एजिमिलेशन इफ यू सी तो भैया एजिमिलेशन इज मतलब कि मतलब किसी चीज को अलाउ करना कि भैया हाँ वो बन जाए यहाँ का पार्ट तो वैसे ही जो फ्रेंच पॉलिसी एजिमिलेशन की उसने काइंड ऑफ फ्रेंच इंडियंस बना दिए पौंडीचेरी में अगर आप भी पौंडीचेरी में जाएंगे आई एम टेलिंग इट मेनी टाइम्स एंड आई एम टेलिंग अगेन कि पौंडीचेरी में जाएंगे आपको बहुत ही फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स वगैरह भी मिलेंगी दैट इज ऑफ दैट टाइम ओनली राइट several uprisings took place from the late 18th century onwards
with the Great Rebellion of 1857 threatening the colonial rule for a while. Most of these uprisings were brutally repressed. मतलब कि बहुत सारे जो चीज़ें 18th सेंचुरी में लेट 18th सेंचुरी में हुई वहाँ पे एक चीज़ थी ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 जिसने कॉलोनियल रूल को थ्रेटन किया मतलब कि धमकाया था है ना। एंड जो ज़्यादा जो अपराइजिंग थी यानी कि ज़्यादातर जो लोग रेबलिंग कर रहे थे रेबल बन रहे थे उनको ज़्यादातर ब्रूटली रिप्रेस यानी कि उनको एज इन ब्रूटली मार के यानी कि चुप करवा दिया गया। इन द 19th century India's classic culture in particular through translated Sanskrit text followed back to the West creating a lasting influence। मतलब कि धीरे धीरे करके अब क्या हुआ 19वीं सदी में जो इंडिया का क्लासिक कल्चर था जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें संस्कृत टेक्स्ट जो थी वो धीरे धीरे करके वेस्ट साइड में चले गए वहाँ पे उन्होंने बहुत ही लास्टिंग इन्फ्लुएंस लाया और वहाँ पे वो सारी चीजें फैल गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी काइंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई गेस विल मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। So question and activities, what is colonialism? Give three different definitions based on the chapter or on your knowledge. So I have collected that as the so see, colonialism is a practice by which one country takes political, economic, cultural control over another country or region for its own benefit। मतलब कि देखो colonialism में क्या होता है कोई और कंट्री एक कंट्री को लेती है एज इन अपनी पूरी कंट्री को एज एन अपने पूरे रीजन को एज एन फॉर देयर ओन बेनिफिट जिसमें वो अपना बहुत पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली कंट्रोल बैठाती है। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैंने इन तीनों टाइप की डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं। जैसे अगर पॉलिटिकल डेफिनेशन की बात करूँ तो colonialism is a system in which a powerful country rules another country and control its government administration। मतलब कि वो दूसरी कंट्री को रूल कर रहे हैं एंड दे आर कंट्रोलिंग उनकी गवर्नमेंट उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सब कुछ वो ही कंट्रोल कर रहे हैं जो उसने टेक ओवर करा है। right? Economic definition मतलब कि colonialism is the exploitation of a country's wealth, natural resources, industries, land, labor for the benefit of colonizing country। यानी कि जो colonize कर रही है उसके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं क्यों क्योंकि जिसको colonize कर रही है वो कंट्री के सारे जो धन दौलत है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज सब कुछ वो एज इन खाली कर जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए जब तक वो यूज कर सके। Right? So that is what I get in economic definition. If I talk about social and cultural definition, so colonialism is the imposition of the colonizers language, education, religion, culture, and values of the people of the colonized country, often weakening their own tradition। मतलब कि जो colonize कर रही है ना वो लोगों की लैंग्वेज एजुकेशन रिलीजन कल्चर वो सारी वैल्यूज कोलोनाइज्ड कंट्री के ऊपर के लोगों पे थोप दी जा रही है एज इन ये करो यही करो यही करो। तो जो उनका खुद का ट्रेडिशन है उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है उनका खुद का जो कानून है दे आर दे कांट डू दैट स्टफ। राइट? सो इन India's case, British colonialism lasted for nearly 200 years and led to political domination, economic exploitation and cultural changes। मतलब कि करीबन करीबन 200 साल तक ये चला जिसके बाद पॉलिटिकल डोमिनेशन हमको ये देखा इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन देखा बहुत कल्चरल चेंजेस भी वी हैड सीन। राइट? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी लिखा है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। Colonial rulers often claimed that their mission was to civilize the people they ruled। Based on the evidence in this chapter, why do you think this was true in the case of India? Why or why not? मतलब कि ज्यादा जो colonial rulers थे जो colonize कर रहे थे उनका ये मतलब था कि वो लोग civilize करने आए हैं हमें as in we were uncivilized or something like that। तो वो हमें civilize करने हैं। So I will say no, the claim that the British came to civilize India is not supported by historical evidence। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश थे वो ज्यादातर अपनी टैक्स ट्रेड वगैरह के लिए आए थे है ना अपना पॉलिटिकली कंट्रोल बैठाने आए थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है that the British mainly came to India for trade and gradually established political control to exploit India's wealth। Right? They imposed heavy taxes, destroyed traditional industries, and transferred enormous amount of wealth to Britain। Their economic policies caused repeated famines in which millions of Indians died। मतलब कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ पे ट्रेड वगैरह के लिए आए थे जिन्होंने अपने यहाँ पे अपना पॉलिटिकली कंट्रोल बिठा दिया और इंडिया की वेल्थ को खत्म कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस बनाए यहाँ की इंडस्ट्रीज होती उनको खराब किया तोड़ दिया डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा एंड बाकी जितना भी अमाउंट था वो ब्रिटेन पे तरफ करते गए और इतनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत रिपीटेडली फेमाइंस भुखमरी वगैरह आई जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इंडियन लोग मरे। राइट? The British also followed policies like divide and rule, subsidiary alliance, and the doctrine of lapse to expand their control। Although they introduced railway, telegraph, and English education, these developments were mainly intended to strengthen British administration, facilitate trade, and move troops quickly। यानी कि उन्होंने एक तरह जैसे कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज भी रखी जैसे डिवाइड एंड रूल यानी कि लोगों कम्युनिटी वाइज
रीजन वाइज बांटा जाए, देन उन पे रूल किया जाए, देन इट इज वेरी इजियर। सब्सिडरी अलायंस, जैसे कि आपका जो होता है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सब्सिडरी अलायंस मीन्स कि उनसे जो आसपास के कह लीजिए या जो आपके नीचे में हैं उनसे मतलब कि काइंड ऑफ कि उनको कोई किंग मेकर बन जाते हैं वो लोग सब्सिडियरी अलायंस में। एज इन वो एज इन एक साथ रूल मतलब रूल तो एज इन जो रूलर है वहाँ का वही कर रहा है बट पीछे से ये लोग चला रहे हैं। एंड सेम वे लाइक डॉग नॉट सेम वे बट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, अगर कोई एज इन नेचुरली मेल हायर नहीं होता किसी उसका, सो देन ब्रिटिश विल बी द कंट्रोलिंग पावर ऑफ दैट किंगडम। सेम वे उन्होंने बहुत सारी चीजें भी जैसे रेलवे टेलीग्राफ और इंग्लिश एजुकेशन भी दिखाई, बट ये जो डेवलपमेंट थी वेलफेयर के लिए नहीं थी लोगों के, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ही स्ट्रेंथन करने के लिए थी ताकि उनका ट्रेड अच्छे से हो पाए, वो अपने जो उनकी आर्मी वगैरह है मिलिट्री वगैरह है उसको क्विकली मूव कर पाए एंड दैट ऑल। So therefore, the British rule had that benefit Britain far more than India, and it was primarily a system of colonial exploitation rather than a genuine civilizing mission। मतलब कि उनके ही फायदे के लिए हो रहा था, देन कोई सिविलाइजिंग मिशन के तहत जो लोग कर रहे थे कुछ ऐसा कुछ था नहीं। That what all they were doing is for their own benefits, right? Now let us move forward. How was the British approach to colonizing India? Uh, Different from earlier European powers like Portuguese or the French। मतलब कि ब्रिटिश का अप्रोच क्या था देन जो पहले आ रखे थे जैसे पोर्चुगीज या फ्रेंच उनसे, तो देखते हैं। तो देखिए, so the British approach differed in several other important ways। कैसे कैसे, जैसे कि जो पोर्चुगीज थे वो ज्यादातर अपना स्पाइस ट्रेड में क्रिश्चियनिटी फैलाने में उसमें थे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा था द पोर्चुगीज मेनली फोकस ऑन कंट्रोलिंग द स्पाइस ट्रेड एंड स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। दे कैरिड आउट फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन एंड एस्टैब्लिश द गोवा इंक्विजिशन। मतलब कि वो जो ज्यादातर क्या था, वो लोग ज्यादातर जो स्पाइस ट्रेड था जो ट्रेडिंग करा रहे थे स्पाइस की मेनली, उस पे वो अपना उसमें थे। देन अदर देन दैट क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे यानी कि कल्चरल चेंजेस करवा रहे थे। एंड वो ज्यादातर यहाँ पे क्या करा रहे थे, दे कैरिड आउट फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन एंड एस्टैब्लिश द गोवा। ठीक है ठीक है, यानी कि गोवा को उन्होंने एज वो ले लिया अपना उसके अंदर एंड उन्होंने वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन भी करवाए। The French concentrated more mainly on trade and political alliances, although they attempted to build a colonial empire. Their control remained limited to few settlements such as Pondicherry। मतलब कि फ्रेंच लोग भी अपना ट्रेड वगैरह के लिए पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए आए थे, बट दो उनका कॉलोनियल एम्पायर भी बनाने का अटेम्प्ट था, बट उनका जो कंट्रोल था उनका जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर एक लिमिटेड एरिया में ही रह गई जैसे पौंडीचेरी, है ना। बट द ब्रिटिश however gradually transformed themselves from traders into rulers। मतलब कि वो लोग एज ए ट्रेडर आए थे बट धीरे धीरे करके वो रूलर की तरह बन गए। एंड they established the East India Company, built a powerful army, interfered in Indian politics, and used strategies such as divide rule, subsidiary alliance, and doctrine of lapse to expand their territories। है ना, मतलब कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आए थे बट वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, इंडियन पॉलिटिक्स में घुसे और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ अपना टेरिटरी और आगे बढ़ाई। ये जो टेरिटरी कह रहा हूँ मैं, ये जो स्ट्रेटजीज थी मैंने आपको समझा रखी है, सो आई डोंट थिंक सो कोई फिर से डाउट आना चाहिए। अनलाइक द Portuguese and the French, the British succeeded in controlling almost the entire Indian subcontinent and ruled it nearly 2 centuries, right? Indians funded their own subjugation. What does this mean in the context of British infrastructure projects in India like the railway and telegraph network? Subjugation मतलब बेटा वो चीज जैसे कि कोई हम किसी को वो कर रहे हैं कि हम एक रूल करो काइंड ऑफ वो चीज। तो देखते हैं, the statement means that the money used to build railway, telegraph, roads and other infrastructure largely came from Indian taxes rather than Britain। ये तो बात सही है क्योंकि वो हमसे बहुत ही जो टैक्स मतलब का बेमतलब का सारा काइंड ऑफ टैक्स वो लेते थे। तो जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई जैसे रेलवे टेलीग्राफ रोड वगैरह, तो सारा कुछ ब्रिटेन के पैसे से या ब्रिटेन की कोई भी फंड से नहीं बना, सारा कुछ इंडियन लोगों के टैक्सेस से उनके पैसे से बना है, राइट। Although the British claimed these projects benefited India, they were mainly designed to मतलब कि ज्यादातर जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या कहते थे कि ये सारा जो चीजें बनाई गई हैं ये जो चीजें हैं वो इंडियन के लिए बनाई हैं, इंडियन लोगों के लिए बनाई हैं, इंडिया के लिए बनाई हैं ताकि उनके अच्छे के लिए बनाई हैं। बट मेजरली जो चीजें क्यों यूज होती थी, ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटीरियर टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। इंटीरियर मतलब कि जो अंदर का एरिया होता है ना वो, तो मतलब वहां से जो रॉ मटेरियल है जो वो ब्रिटेन में ट्रांसफर करवा रहे हैं वो एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो वहां के लिए जा रहा था। तो वहां से वो पोर्ट्स की तरफ जाता है, पोर्ट से फिर शिप्स की तरफ, वहां से एक्सपोर्ट, राइट। ब्रिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स टू इनटू इंडियन मार्केट, यानी कि जो ब्रिटिश से जो गुड्स बनाए गए हैं उनको यहाँ पे भी बेचते थे वो लोग, राइट। मूव ब्रिटिश सोल्जर क्विकली टू सप्रेस रिबेलियन, जो रेबेलियन इधर से उधर होते थे यानी कि एक जगह पे होते थे वहां पे आर्मी की दिक्कत है, वहां पे जो दिक्कत है, तो जो ट्रूप्स थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको ट्रांसपोर्ट जल्दी करवाना, राइट।
एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और ताकत पहुंचाना, right? Thus, Indian people paid taxes that financed projects serving British political, military, and economic interests. In this way, Indians were forced to pay for the very system that kept them under colonial rule. All right. What does the phrase divide and rule mean? Give example of how this was used by the British in India. तो divide and rule कैसे यूज हुआ था, तो वो देखते हैं. सो डिवाइड एंड रूल एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जिसने ब्रिटिश को यहाँ पे इंडिया में कंट्रोल बनाने में ये साबित किया कि वो एज इन बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को डिफरेंटली बांट देते थे एंड देन दे वर रूलिंग देम, राइट. और वो कोई भी एज इन अगर एक साथ हो जाते हैं तो एज इन हमारे को बोलेंगे, लेकिन अगर उनको खुद से ही लड़ा दो तो हमें नहीं, एक दूसरे में लड़ते रहेंगे. इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, राइट. So that was it. Divide and rule was a political strategy used by the British to maintain control over India by creating divisions among different groups of people. Instead of allowing Indians to unite against colonial rule, the British encouraged conflicts between rulers, communities, and regions. यही मैंने कहा. कुछ कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सपोर्टिंग वन इंडियन रूलर अगेंस्ट अनदर ड्यूरिंग सक्सेशन डिस्प्यूट्स, यानी कि जैसे सक्सेशन डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर एक राजा मर गया है तो उसके बाद जैसे दो तीन कैंडिडेट है कि हाँ ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है राजा, तो उसमें एक सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि दूसरे को कर रहे हैं, तो उससे थोड़े बहुत फेयरनेस नहीं दिखा रहे, बट गए हैं काइंड ऑफ, राइट. Conspiring with Mir Jafar against Siraj ud-Dौला before the Battle of Plassey, यानी कि बैटल ऑफ प्लेसी जो यहाँ पे गई थी, तो उन्होंने मीर जाफर को क्या कहा था कि हम तेरे को नवाब बना देंगे, बट तुमको ये जो जंग है, ये जो चीजें हैं, ये हरा दो, है ना. मीन्स तुम लोग हार जाओ, लेकिन अगर जब तुम हार जाओगे तो मैं ही इस जगह का मैं बना दूंगा क्या, नवाब, राइट. तो उससे ऐसे करके उन्होंने कंस्पायर करके बैटल ऑफ प्लेसी जीती. इनकरेजिंग डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज, एक दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज के खिलाफ डिफरेंसेस बढ़ाना. कीपिंग प्रिंसली स्टेट्स पॉलिटिकली डिपेंडेंट टू द सब्सिडरी अलायंस, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अपने पे डिपेंडेंट रखना पॉलिटिकली, जैसे सब्सिडरी अलायंस बना के, राइट. एक्सप्लॉइटिंग रीजनल राइवलरीज टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश अथॉरिटी, यानी कि जो रीजनल राइवलरीज, जगह जगह की जो राइवलरीज एक दूसरे में, उनको उनसे स्ट्रेंथन क्या करना, ब्रिटिश अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने की, जगह जगह जो लड़ाइयाँ हैं वो आपस में करते रहेंगे, ब्रिटिश को कोई पूछेगा नहीं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट. So these all policies weakened India's Indian unity and made it easier for British to establish and maintain their rule over us. Right? Now I'll move forward with the next question. Choose one area of India life, such as agriculture, education, trade, or village life. How was it affected by colonial rule? Can you find any sign of those changes still with us? Express your ideas through a short essay, poem, drawing, or painting. So see, हम एज एन एजुकेशन पे एक मैंने शॉर्ट ऐसे लिखवाया, दैट इज कि the British colonial rule brought major changes to India's educational system. Before British rule, education was provided through pathshalas, madrasas, gurukuls, and other traditional institutes. Whereas children learned languages, maths, philosophy, science, and moral values. Right? जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले, मतलब वो लेके तो आया बहुत चेंजेस, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे पाठशाला, मदरसा, गुरुकुल, वो सब थे जो कि लोगों बच्चों को एज ए लैंग्वेजेस, मैथ्स, फिलोसफी सब कुछ सिखाते थे, राइट. In 1835, Thomas Babington Macaulay introduced English education, and his aim was to create Indians who would assist the British administration. English became the language of government and higher education, while many traditional schools gradually declined. यानी कि क्या, यानी कि ये कि 1835 में जो थॉमस बेबिंगटन मैकले थे, वो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन दिया को लेकर, और उनका ये एम था कि जो इंडियंस, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, वो एज ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, ब्रिटिश के अंडर काम करें. तो जो इंग्लिश थी वो एक ऐसी क्या बन गई, वो ऐसी लैंग्वेज बन गई गवर्नमेंट की और हायर एजुकेशन की भी. तो इसलिए जो ट्रेडिशनल स्कूल थे, जो पहले के स्कूल थे, वो लोग धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए, बंद होते गए. This policy created a class of educated Indians who later played an important role in India's freedom struggle. However, it also weakened many indigenous education system and created social differences between English educated people and others. यानी कि ये जो पॉलिसी थी, ये जैसे कि क्लास बनी एक एजुकेटेड इंडियंस की, वो आगे चल के इंडियन की फ्रीडम हिस्ट्री में भी काइंड ऑफ रोल है उनका, बट उनके जो पुराने एजुकेशन सिस्टम है उसको वीक कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस भी लेके आती है पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों पे, राइट. इवन टुडे English continues to be an important language in education, administration, and business and higher studies. Thus, the influence of British education policies can still be seen in modern India. यानी कि आज भी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, बिजनेस तक में भी. तो जो एजुकेशनल पॉलिसी थी जो ब्रिटिश लाए थे, उसका हमें इन्फ्लुएंस जो है आज के दिन में भी, आज के इसमें भी दिखता है, राइट. I'll move forward with question number 7. That is, imagine you are a reporter in 1857, write a brief news report on Rani Lakshmibai resistance at Jhansi.
include a timeline and storyboard showing how the rebellion began, spread and ended, highlighting key events and details. आप इसमें से कुछ और भी बना सकते हो, एज मेड शॉर्ट ऐसे, यू कैन मेड एनी अदर थिंग, क्रिएटिविटी है, बनाओ। तो हम देखते हैं रिपोर्ट कैसे हमने बनाई है झांसी के ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। सो झांसी जोन 1858, क्योंकि उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। सो अ fierce battle is taking place in Jhansi as Rani Lakshmibai continues her brave resistance against British forces, refusing to surrender her kingdom after its annexation under the doctrine of lapse. Doctrine of lapse के तहत उनका जो किंगडम था उनको हड़प लिया गया था, राइट। द रानी हैज इंस्पायर्ड thousands of soldiers and citizens, यानी कि रानी से प्रभावित होकर बहुत लोग लड़ने भी आए, राइट। With the support of Tatya Top, she successfully escaped from Jhansi fort and later captured Gwalior fort, and her courage and leadership have become symbols of India's struggle against British rule. So it is one of the notable things. Despite her bravery, Rani Lakshmibai was killed in the Battle of 18 June 1858 while fighting fearlessly against British army. Her sacrifice inspired people across the country. So timeline क्या थी? ये थी timeline देखिए। Rebellion begins at मेरठ, मेरठ पे 1857 में होता है। फिर रिवोल्ट जो है धीरे धीरे करके दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी पे 1857 में ही फैल जाता है। अब ब्रिटिश जो है वो 1858 में झांसी को अटैक करते हैं। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वहां से भागती हैं, एस्केप करती हैं और ताजे तोप से मिल जाती हैं। जून 1858 में ग्वालियर को भी कैप्चर कर लेते रेबल्स, यानी कि जो थे उनके खिलाफ थे, ब्रिटिश के खिलाफ। 18 जून को यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई डाइज फाइटिंग ब्रेवली, बेचारी। बट 1859 में जो ब्रिटिश है वो रेबेलियंस को सप्रेस भी कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, that is, imagine an alternative history where India was never colonized by Indian power. Write a short story of 300 words exploring how India would have developed their own path. So it is kind of hypothetical. So it is all what I can thought of. So that is what is written. I'll just read, right? Imagine a world where no European country ever colonized India. Indian kingdom continued to trade freely with countries like Asia, Africa, Europe while remaining independent. Indian craftsmen became world famous for producing fine textiles, seals, ships, and scientific instruments. Universities such as Nalanda and Takshashila were rebuilt and became centers of learning for students from around the world. Without colonial exploitation, India's wealth was invested in industries, agriculture, education, with scientific researches as well. Railway and road were built according to the needs of Indian people rather than for the foreign trade as well. Right? Different kingdoms gradually united to form a democratic nation based on cooperation instead of conquest. India's ancient knowledge blended with modern scientific discoveries, making it one of the world's leading nations in medicine, mathematics, engineering, and technology. India's language Indian languages flourish alongside international, like while literatures, music, dance, and art continue to develop without foreign domination. Although India still faced challenges, it solved them through its own institution and leadership. The country became a symbol of peaceful development, cultural diversity, and innovation. This alternative history reminds us of how greatly colonial rule changed India's natural course of development. Right now, this is actually just a role play that you have to enact between a British official and the Indian personality like Dadabhai Nauroji on the British colonial rule. तो आप देख सकते हैं that British has brought British officials क्या कहते हैं, British has brought real beauty and growth, English education and modern administration to India. Dadabhai Nauroji कहते हैं those developments were reserved British interest. Indians themselves paid for them through taxes. क्या उनका यही मानना था कि उन्होंने ही टैक्स पे करा है, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए वो चीजें बनी है, लोगों के लिए नहीं बनी, है ना। ब्रिटिश ऑफिशियल वी हैव इम्प्रूव्ड ट्रेड एंड मेड इंडिया पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. ब्रिटिश पॉलिसी destroyed Indian industries and drained India's wealth. Millions suffered from poverty and repeated famines, है ना। तो उन्होंने जहाँ पे ट्रेड ये सब करा, बट उनके साथ साथ जो अंदर की इंडस्ट्रीज थी उसको खराब किया, इंडिया की वेल्थ को पूरा चूस लिया, लोगों को मार दिया। उन्होंने बोला कि वी हैव बिल्ट लॉ एंड वी हैव ब्रॉट लॉ एंड ऑर्डर। ट्रू, लॉ एंड जस्टिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इंडिया डिजर्व्स सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि उन्होंने लॉ ऑर्डर तो करा और वो सारे कुछ तो उनके हाथ नहीं थे, तो कोई इक्वालिटी या आज़ादी तो हमें तब भी नहीं थी। डू यू बिलीव ब्रिटिश रूल हैज harmed India? Yes, that is why I called un-British rule in India. क्योंकि वो जो ब्रिटिश रूल था वो उनकी खुद की ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ था. That is why he called un-British rule in India. A just government should work for the welfare of people, not exploit them. मतलब कि जो जस्टिस वाली गवर्नमेंट, एक जस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि लोगों को एक्सप्लॉइट करती है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं, एक्सप्लोर अ लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, ट्राइबल पीजेंट फ्रॉम योर स्टेट और रीजन ड्यूरिंग द colonial period. Prepare a report or poster describing all these. That is like what was the specific target, who led the movement, what were their demand, how did the British response, how is the events remember today. ये आप लोग खुद कर सकते हैं, but then also I have just made this thing, ठीक है। So you can see कि
This is about Punjab Hukka movement, right? So इसका trigger क्या था? The movement, like why so it began. So it began because of British domination and social reforms imposed by the colonial government and growing dissatisfaction among the people of Punjab after the annexation of Sikh Empire. Sikh Empire के उसके बाद जब उनको वो कर लिया गया, उसके बाद का जो dissatisfaction था वो था. The movement was led by Guru Ram Singh, right? The demands were the freedom from British rule, protection of Indian culture and religious values, boycott of British goods, and social reform जैसे कि simplicity, equality या self resistance. ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था? The British considered the movement dangerous. Many Kokas were arrested and several were executed by being blown from cannons. Guru Ram Singh was arrested and exiled to Burma, that is Myanmar. And how it remembered today, the Gupta movement is remembered as one of the earliest organized movement against British rule. Guru Ram Singh is honored for promoting patriotism, self-reliance, and social reform, and his contribution is remembered in Punjab through memorial and historical accounts. आप और भी कोई movement as in search out करके research करके बता सकते हैं, उसके trigger, leader, demands, response and कैसे उसको आज याद रखा जाता है उसके हिसाब से बता सकते हैं. So that's it. I'll just end this now. और तो कोई question नहीं है या नहीं है. So that's it, guys. And we have completed your chapter the colonial era in India. तो इसमें कुल मिला के आपके एपिसोड 1 टू 13 है. So do not forget to see all those. राइट, आज से आपका जो है हिस्ट्री के वाला चैप्टर खत्म होता है और हिस्ट्री का जो अभी का कार्ड है वो भी खत्म होता है. कार्ड मतलब एज इन ऑल द चैप्टर्स. एंड विल मीट यू ऑल विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड, विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ विद द वेरी न्यू चैप्टर अगले हफ्ते से. आई गेस अगर ऐसा ही स्केड्यूल रहेगा तो. सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड विल मीट यू वेरी सून विद द वेरी next video of the very next new chapter. Okay guys, bye bye and thank you.